Okay, so have you done homework? You all have completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Very, ma'am. Yes, ma'am. very good, very good. Yes, ma'am. So first I'll check whether you have completed or not, and for that I will ask some questions. Yes, ma'am. Okay, very good. Yes. Based on that, whatever we have learned till date, till yesterday. Okay. Yes, ma'am. So who will take initiative? हम क्वेश्चन बनाने का कि आंसर देने का? No, beta. Of course you have to give answers. Question बनाने में क्या है? Question तो सब बना लेंगे. Book सामने कुछ भी पूछ लोगे. You have to give answer. I'll ask question and you will have to give answers. हम क्लास वर्क यूज कर ले उन क्वेश्चंस के लिए. What do you want to use? मैम क्लास वर्क. Classwork means classwork copy. Yes, ma'am. Of course, no problem. You can use. Okay, तो सबसे I am पहले. ready. Okay, क्या बात है अखिल? Very good. Okay, first you do one thing. You all give big hand to Akhil. Chalo, good. So first question will be for Akhil. Okay, Akhil? Okay, ma'am. Good. Okay. Let me select first this one note so that I can write some question. Okay, now Akhil, question for you is question. So simple question. Suppose if I write decimal 2.34560560056000 dash dash dash. Okay. So what can you say? It is a rational number or it is an irrational number? Ma'am, irrational number. Why it is an irrational number? Ma'am, because ma'am digits जो है ma'am वो irrational ma'am digits. Ma'am, it's non-terminating but non-repeating. Very good, very good. Since this decimal is of the form non-terminating, non-repeating, and we know that non-terminating, non-repeating decimal is only for irrational number. So you can say that it is an irrational number. Very good, very good. Okay, second initiative कौन लेगा? जल्दी. संजय. हम रोल नंबर से करवा लेते हैं ना, सब किया है. Yes, ma'am. What? Yes, What? ma'am. What? What? Ma'am, roll number से कर लो. मैम रोल नंबर से करवा लेते हैं. वो तो फिर मुझे जो Yes, करना ma'am. है मैं करूंगी. मैं देखती हूँ कि सबसे पहले इतना बोल्ड कौन है मेरी क्लास में. Ma'am, me, Ankush. मैम Ankush. नियति. Okay, very good. So, Ankush, wait. Second question for Ankush. Okay. So question is, if I write square root of 334, then what can you say? It is an irrational number or it is a rational number, and why? Ankush, question is for you. Only you will give answers. Others will not give. Ma'am, can you repeat the answer? Ma'am, मेरा network चला गया था. Acha. One number is written on this screen, square root of 334. Can you see this question? Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so you have to say this number is a rational number or irrational number, and why? With reason you have to give answer. Ma'am, irrational. Why rational?
Ma'am, this number has no cube. No cube? Ma'am, may I? No. May I? Ma'am, may I? Niyati. Ma'am, this is not a perfect square. Yes, because 334 is not a perfect square. It is not a square of any other number. So you can say that square root of 334 will be an irrational number. Yes, very good. Next, third chance कौन लेगा? Ma'am, Pranav. Niyati. मैम संजय. नियति का हो गया चांस. कौन? Pranav. मैम संजय. Pranav. अच्छा, okay. After Pranav, Sanjay, your turn. Pranav, question for you. If I write 3, this, I don't know what I have written. Just you have to read only. 3, then this sign, then this one. What can you say? This whole number, this one, this full number is a rational or irrational? Ma'am, it's a rational number. Ma'am का. Ma'am का. मैम का गया है. सायरा मैम. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पेरेंट्स कॉल कर देते हैं कि हमारी बेटी ज्वाइन नहीं कर पाएगी, हो गया लॉस्ट नेटवर्क. अच्छा, इसका कोई सॉल्यूशन है कि इनकेस किसी का कॉल आ जाती बंद हो जाता है ये नेट, इसका ये लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन आ जाता है, कुछ ऐसा क्या है सॉल्यूशन इसका, कोई बताएगा? मैम हॉटस्पॉट से लेते हो, मतलब यस हॉटस्पॉट यस, से कनेक्ट करते हो लैपटॉप को? मैम हॉटस्पॉट बहुत बार ऐसा होता है. हॉटस्पॉट से इस तो मैम मेरे मोबाइल में भी yes, ऐसे ही होता ma'am. है. किसी का कॉल आता है तो नेट ऑटोमेटिक मैम साइलेंट कर दिया करो, फोन साइलेंट. नहीं साइलेंट तो नहीं कर सकते बेटा, जैसे मान लो किसी का अर्जेंट कॉल आ जाए स्कूल से. साइलेंट करने से कुछ नहीं होता मैम. साइलेंट क्या करो चीज? चाहे ना करो मैम, फिर भी मैम नेट बंद हो जाता है मैम. मेरे मोबाइल में भी ऐसे ही होता है. हाँ, चलो कोई बात, इट्स ओके. हाँ, तो क्वेश्चन किसके लिए चल रहा था अभी? क्वेश्चन प्रणव. प्रणव के लिए. वेट लेट मी शेयर माय स्क्रीन. हाँ प्रणव, क्वेश्चन फॉर यू. दिस वन इज एन इरेशनल और इरेशनल नंबर. जल्दी फास्ट. मैम रेशनल. व्हाई रेशनल? मैम क्योंकि जैसे 1000 के वो रूट में 3 दिया है तो 1000 टू द पावर 1/3, और वो जो बाहर 3 दिया है वो उससे मल्टीप्लाई होगा. सो फाइनल आंसर विल बी? तो मैम 1/3 इंटू 3. मैम तो 3 कट जाएंगे, तो मैम 1000 टू द पावर 1. Final answer. What will be the final answer? Solve this. After solving, what will you get? Ma'am, the number 1000. No, it's wrong. Ma'am, may I? No. May Other I? than you and Akhil, who can give answer? मैम may I? Aniket. Aniket, yes, Aniket. Ma'am, the cube root of 1000 will be 10, and then three root 10. So when the 3 root 10 is a irrational number. No, it's wrong. Again. Ma'am, may I? Ma'am, may I? Samrati. कौन? नियति? No, नियति. Ma'am, Samrati. हाँ, समृद्धि. Yes, बेटा, you can give answer. Ma'am, we can write 1000 like 10 raised to the power 3.
देन Yes. 10 raised to the power 3, उसके ऊपर मैम 1, उसके ऊपर एक और पावर आ जाएगी 1/3, हम्म एंड मैम उसे 3 से इंटू कर देंगे, फिर मैम वो 3 वहां पे जाके 1/3 से 3 कट हो जाएगा, फिर मैम 3 into 10 बचेगा, 30 आंसर आ जाएगा। very good, very good, very good. Give a big hand to her. 100% correct answer with proper steps. देखो सीधी सी बात है, आपको मैंने क्या बताया था yesterday only I explained it that if there is a number outside any root sign, it means there is a sign of multiplication. So you can write 3 into, this means multiplication. Now simply you have to solve this cube root. Cube root means cube root of 1000. 1000 can be written as 10 into 10 into 10. Now since you have to find cube root, it means out of 3 same factors, one factor will come outside because there is a sign of cube root. In case of square root, out of 2 same, one will come outside. In case of fourth root, out of 4 same factors, one factor will come outside. But here there is a sign of cube root. It means out of 3 same factors, one factor will come outside. 1 2 3 3 सेम है तो इन 3 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो 3 into 10, जैसे 10 बाहर आएगा तो क्यूब रूट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व हो गया। फाइनल आंसर 30 एंड 30 इज अ रेशनल नंबर। किसी को डाउट इसमें जल्दी बोलो। नो मैम। सबको समझ में आ गया? No, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अखिल को क्या बोल रहे हैं? नो मैम, मतलब अखिल को नहीं आया समझ में? क्यों अखिल? Yes, ma'am. अच्छा नहीं आया? मैम डाउट नहीं है, अच्छा जब डाउट मैं नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा जाए ना उसका समझ आंसर में दिया। तो आ गया है। हाँ यस चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, अब मैं आपसे नेम बोलती हूँ, वही आंसर देगा मुझे। हाउ मेनी हैव ज्वाइन? 23। अच्छा कुल मिला के 23 माइनस 2 कर दो, 21 एंड टोटल स्ट्रेंथ इन योर क्लास इज आई थिंक 30। लेट मी चेक। अब जो ये एब्सेंट हो रहे हैं ना, अब उनको थोड़ा सा डोज देना पड़ेगा। टोटल स्ट्रेंथ इज 30, आउट ऑफ 30 ओनली 20 आर प्रेजेंट। अच्छा अपने अपने फ्रेंड्स को देखो, जल्दी से बताओ कौन कौन एब्सेंट, इनका नाम नोट करती हूँ। आज इनके पेरेंट्स को कॉल करूंगी, जल्दी फटाफट। एक सेकंड आप लिस्ट देखो ऑन राइट हैंड साइड। मैम आपकी आवाज में वन बाय आ रही है। वन। अनमोल नेक्स्ट। करण। मैम गगन। मैम गगन। गगन नेक्स्ट। सत्यम। मुस्कान। मुस्कान नेक्स्ट। सत्यम। सत्यम नेक्स्ट। वेदांती। और वेदांती। Yes, ma'am. वेदांती नेक्स्ट। टोटल है साहिल। अनमोल। ये कुछ माइनस क्यों होते जा रहे हैं? 22 में तो 2 तो माइनस कर दो, बचे 20। 10 स्टूडेंट्स के नेम होने चाहिए। मैम मुस्कान आ गई। अच्छा, मुस्कान आ गई, चलो ठीक है। तो अनमोल, करण, सत्यम, वेदांती। और बोलो मैम दो न्यू स्टूडेंट भी हैं। स्टूडेंट भी है मैम, मुकुंद और क्या नाम है मैम? गोनिका। मैम गुनिका। अच्छा मैम मुकुंद। हाँ गुनिका। ओके ओके, गुनिका का जो भी गुनिक नहीं बेटा, गुनिका तो यहाँ इसमें नहीं है। नहीं नहीं, गुनिका को मैंने उसमें डाल दिया। हाँ मैम इनविटेशन में तो मैम नाम है मैम गोनिका। अच्छा हाँ गुनिका है, यस यस, गुनिका एंड मुकुंद 2 लोग हैं। मैम सत्यम आ गया। सत्यम आ गया 22। चलो अब आज मैं इनको अच्छे से देखती हूँ फिलहाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अरमान। अनम्यूट बेटा अरमान। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू ओनली यू हैव टू गिव आंसर, ओके? Yes, ma'am. ध्यान से देखना, क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आपको। इफ क्वेश्चन इज 3 then there is a sign of this, I don't know which sign is this, then here is 16। आंसर क्या होगा जल्दी बोलो। मैम 3 तो into में चला जाएगा। हाँ हाँ बोलो बोलो।
मैम 3 into 4 16 से कट जाएगा मैम, 16 4 से कट जाएगा। आंसर बोलो, आई वांट फाइनल आंसर। ओके मैम। इसका मतलब है कुछ सुनाई, तुम मतलब ध्यान से क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो बेटा। मैम 12 आ रहा है आंसर। कैसे आ रहा है 12? हाँ बताओ कैसे 12 आएगा। मैम मैंने 3 को इनटू में रखा और मैम 16 हाँ और 4 को डिवाइड कर दिया। अच्छा, मतलब 16/4 कर दिया ऐसा। यस मैम। वेरी गुड। ये किसने बताया बेटा? कौन इतना अच्छा टीचर है जिसने तुम्हें ये समझा दिया? हाँ, who taught you this concept that simply you have to divide these two? क्या सुन रहे हो क्लास में? मतलब यहाँ टीचर पढ़ाए, वहां अपना कुछ भी मस्ती करो, है ना, गेम खेलो या कुछ भी करो। अब ये आप सोच लो, ये मैं सोचना कि बस आराम से मैं 40 मिनट्स आपको पढ़ाती जाऊंगी, आप कुछ भी करोगे, किसी से भी क्रॉस क्वेश्चन करूंगी, और नहीं बना तो मीटिंग से तुरंत रिमूव करके एब्सेंट भेज दूंगी घर में। पेरेंट्स को पता चलेगा, आई विल गिव देम एक्सप्लेनेशन कि मैंने क्यों मीटिंग से हटाया, क्यों एब्सेंट भेजा। जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने। इफ देयर इज अ क्यूब रूट, देन आउट ऑफ 3 सेम फैक्टर्स 1 फैक्टर विल कम आउटसाइड, and same concept you have to apply here only. Instead of here 3, 4 is written here. 3 means cube root, 4 means fourth root, because this 4 is written just inside this sign. Inside this sign means there is a sign of fourth root. Just अभी मैंने explain किया। क्या सुन रहे हो क्लास में? Very bad. अब कल से मैं सबको क्वेश्चन पूछूंगी। यस बेटा, रुको अभी, वेट, अभी कोई आंसर नहीं देगा। वेट वेट, अभी कोई मैम मैं आ चाहिए। मैम आ अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछूं तुरंत मीटिंग से चले जाएंगे। हाँ ब्रिजेश लोधा, देखो क्या ब्रिजेश लोधा गायब, इसलिए क्योंकि उसको लग रहा है मुझसे ना पूछे मैं। अरे बेटा, ये जो आप स्टाइल दिखाते हैं ना, मुझे सबका पता है इसमें। वेद, संजय धाकड़, यस मैम। समृद्धि, डोंट राइट आंसर। मैम 6। मैम आंसर इज 6 मैम। वेट, आंसर पर इसके स्टेप्स बता मुझे। यस मैम। मैम मैं आए। First we find the factors of 16 मैम। वेट 2 वेट, into 2 हाँ बोलो। मैम factors of 16। हाँ, फैक्टर्स ऑफ 16 तो 2 into 2 into 2 मैम, जो 2 है ना मैम वो बाहर आ जाएगा मैम। 4 इसको times 2 लिखेंगे फोर्थ रूट, ऐसा बोलो। ऐसा देखो, आपको रीड करना भी आना चाहिए। क्वेश्चन रीड कैसे करते हैं? आप लिखोगे 3 into then fourth root of inside root 2 into 2 into 2. Since you have to find fourth root, so out of 4 same factors 1 factor will come outside. तो बाहर आ जाएगा 2, 3 into 2, फाइनल आंसर 6। यस करेक्ट। 6। हाँ यस। अभी जो मक्कार है ना 4 5, इनको तो मैं ठीक करूंगी ऑनलाइन ही ठीक करूंगी। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। मैम जो यस बेटा बोलो। मैम फोर्थ रूट, मैम 3 into फोर्थ रूट करके 2 raised to the power 4 करके 4 को कैंसिल कर सकते हैं क्या? देखो, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है, और दूसरा मेथड देखो ध्यान से, दूसरा भी बता देती हूँ मैं। 3, अरे ये कलर अच्छा नहीं, 3 into, इसको लिखेंगे 16 raised to the power 1/4. Instead of writing this fourth root, you can write this in exponential form, and in exponential form you will have to write 1/4. Next step will be 3 into, अब ध्यान रखना, यदि पावर में अपॉन 4 है तो 90% क्वेश्चन ऐसा होगा कि ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आप 16 के फैक्टर्स निकालो। 16 के फैक्टर्स आप ऐसे लिखो, जो ये है 2 into 2 into 2 into 2 whole raised to the power 1/4. 3 into, up to how many times? 4 times. So you can write 2 raised to the power 4. This 2 2 2 2 2 can be written 2 raised to the power 4. अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये दोनों का ये 4 4 क्या हो गया? कैंसिल। 3 into 2, फाइनल आंसर 6. This method you can use any one method, no problem, both are correct. आगे सुन में। यस मैम। Yes, ma'am.
गुड, दोनों सही है, जो आपको अच्छा लगे वो करो। आपको दो ऑप्शन दे दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रखर मोदी, अनम्यूट बेटा। यस मैम। हाँ, क्वेश्चन फॉर यू। अब आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगी क्योंकि मुझे मालूम है कुछ तो इतने ग्रेट हैं, उनका पैरेलल में कुछ काम चल रहा होगा। न्यू विंडो ओपन किया, इतने स्मार्ट तो हो, इतना तो कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है, और अपना कुछ भी कर रहे हो, अटेंडेंस लग रही है। इस गलतफहमी मत रहना, कभी भी किसी का नाम ले लूंगी। हाँ, क्वेश्चन फॉर यू बेटा, ध्यान से देखना। इफ आई राइट 3 देन, चलो सिंपल अभी पूछ रही हूँ, देखना ध्यान से। ओके, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? एंड दैट आंसर विल बी रेशनल और इरेशनल। फाइनल आंसर, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके मैम। हाँ, जल्दी बेटा, फास्ट, तो ओरल क्वेश्चन है, डोंट टेक। यस मैम। मैम इरेशनल। फाइनल आंसर इज मैम इरेशनल नंबर। मैम फाइनल आंसर इज 96। नो, बाकी कोई आंसर नहीं देगा। दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर हिम। फाइनल आंसर बोलो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो बेटा, प्रखर। यस नेक्स्ट मैम। स्टेप बताओ, मैम जो आंसर 3 बोलो। और 4 है मैम, क्यूब हाँ, रूट बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर मैम, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 into 4, यस। और एंड मैम जो अंदर मैम 2 स्क्वायर रूट और 4 है मैम, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 4, यस। नेक्स्ट, यस मैम। मैम फिर मैम जो 3 into 4 है मैम, वो 12 हम उसे लिख देंगे, और मैम अंदर जो 2 into 4 है मैम, उसे 8 लिख देंगे। 8। चलो नेक्स्ट। 8 को फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखो, 8 को फैक्टराइज नहीं बेटा, प्राइम फैक्टर। हाँ ठीक है, फैक्टराइज नहीं बोलते उसको, प्राइम फैक्टराइजेशन। Instead of multiplying these two, it is better that simply you write prime factorization of 4. 2 तो ऑलरेडी पहले से है, 4 को लिखेंगे 2 into 2, तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, अदरवाइज एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 12। नेक्स्ट। यस मैम। अब मैम फिर मैम आंसर आ जाएगा मैम जो 2 है मैम, जो 2 2 है मैम, वो बाहर आ जाएंगे मैम। 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। Yes, out of same 1 2, yes, 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 yes. और inside you will get root 2. यस मैम। So final answer 12 2s are 24. Very good, very good. जिसने 96 बताया वो रॉन्ग बताया, ये है करेक्ट आंसर। एंड 24 रूट 2, चूंकि आपके पास रूट का कुछ फॉर्म है। यस बेटा। यस मैम। मैम मैंने आंसर दूसरे मेथड से निकाला है। किसी भी मेथड से निकालो, यू विल गेट द सेम आंसर, चाहे जो मेथड लगाओ, आंसर चेंज नहीं होता कभी, आंसर यही Yes, sir, आएगा। मैंने भी दूसरे मेथड से किया है, आंसर सेम आया। आंसर चेंज नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। खैर, ये हो गया मैम, एक doubt। इरेशनल। ये है आपका, एक सेकंड बेटा, इरेशनल नंबर। वाई इरेशनल? रूट का कोई भी पार्ट आपके पास रहेगा, फाइनल आंसर विल बी इरेशनल। हाँ, डाउट किसका? प्रणव पूछो बेटा। मैम जैसे मैम वो स्क्वायर रूट के आगे 3 दिया है, तो मैम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 बिल्कुल to नहीं the power 1/3। दिस वन। यस मैम भाई। ए बेटा, मैंने क्या समझाया था प्रणव? इफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ टाइप 3, ध्यान से देखना दोनों में डिफरेंस। रूट के अंदर यदि 3 लिखा होगा, इट मीन्स this is 2 raised to the power 1/3, but this 3 is written just outside this square root sign, it means 3 into square root of 2। यदि इसके यहाँ देखो, ध्यान से देखो, मैंने इसके अंदर लिखा है यहाँ पे, it means this is power 1/3, इसके इनसाइड होना चाहिए तब 1/3 होता है। यदि इसकी आउटसाइड, इट मीन्स देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन दीज टू। क्लियर? यस जल्दी बोलो। यस मैम। हाँ, सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, रूट की आउटसाइड, इसका मतलब 4 into है। यदि रूट के अंदर होता तब उसका 4th रूट माना जाता है। 4th रूट, क्यूब रूट, 5th रूट, इस तरह से रीड करते हैं।
ठीक है, ओके। अच्छा, एक काम रुको, एक आपको पहले मैं सबको एक एक टास्क देती हूँ। ये जितने बच्चे एब्सेंट हैं 20, उनको सबको एक एक कॉल करके बोलना, क्योंकि ये इनको मैसेज देना पड़ेगा मुझे। अनमोल को कौन कॉल करेगा, जल्दी बताओ बेटा। मैम आगे मैम मैं कर दूंगा। हाँ, अब उनको कॉल करके बोलना कि मैम से आप बात करो। जो लेवल कोई एक बताओ, आर्यन, आर्यन तुम बोल रहे हो उसको, मैं बोल दूंगा। ठीक है, उसको बोलना है मैम से बात करो और 100 शाम को 7 बजे के पहले पहले मुझे कॉल करेगा, याद से। मैं बोल दूंगा। चलो ठीक है, अनमोल का हो गया। नेक्स्ट करण, करण को कौन बोलेगा, जल्दी बोलो फटाफट। करण, कोई एक बोलो बेटा, किसके पास नंबर है उसका? किसी के पास नहीं है। अच्छा चलो, करण क्रॉस। गगन, मैम मैं बोल दूंगा। मैं बोल ब्रिजेश लोधा, ठीक है ब्रिजेश, गगन को तुम कॉल करोगे, बोलना मैम से बात करो। यस मैम। गगन का भी हो गया। नेक्स्ट सत्यम, मैम मैं कर दूंगा। मैम मैं कर दूंगा। सर्वज्ञ, मैम वो तो क्लास में ही अरे है। सत्यम तो मैम यहीं पे है। मैम क्लास में है वो तो। अच्छा सत्यम तो है, मैंने सत्यम का नाम क्यों लिखा, सत्यम को क्रॉस करो, सत्यम को तो ऑलरेडी है यहाँ पर। ओके, वेदांती, वेदांती मैम मैं कर दूंगी। कौन है? कृतिका, हाँ बेटा, उसको बताना कि मैम से बात करो तुम, ठीक है। मैम पलक भी प्रेजेंट नहीं है। पलक का नहीं बेटा, पलक का रीएडमिशन होगा, पलक का नहीं, पलक का नाम नहीं है। अच्छा, तो कुल मिला के अनमोल हो गया, गगन एंड वेदांत। मुस्कान। हाँ, मुस्कान को कौन कॉल करेगा? मैं कर दूंगी। मुस्कान को समृद्धि, हाँ बेटा, बोलना 7 बजे के पहले पहले मैम से कॉल करो और बात करो। तो मुस्कान मैंने लिख लिया, मुस्कान भी हो गई। अब चेक करो और कौन एब्सेंट है। अच्छा रुको, मैं आपको लिस्ट दिखा दूँ। वेट 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 वेट, मैं प्रेजेंट, यू आर प्रेजेंटिंग तो आ रहा है। आप अपनी यहाँ लिस्ट देखो, एक सेकंड वेट करो, मैं आपको प्रेजेंट करके लिस्ट दिखाती हूँ। आप मुझे बताओ इसमें कौन कौन ऑप्शन, क्योंकि सबसे पहले सोल्यूशन आपका क्लियर होना चाहिए। 9 मुझे स्कूल में रिपोर्ट देनी। ये आपकी लिस्ट है, दिख रहा है सबको लिस्ट? जल्दी देखो। यस मैम दिख रही है। यस मैम। यस मैम दिख रही है। प्रेजेंट, अनिकेत प्रेजेंट, अंकुश प्रेजेंट, अनमोल प्रेजेंट नहीं है ना? हाँ अनमोल। नो मैम। नो मैम नहीं है। अरमान, नो मैम नहीं है। अरमान, अरमान अरमान है। यस यस मैम अरमान है। भी है, शहीद भी है, गगन मीना कहाँ, ठीक है बता दिया, गगन मीना, ओके। देन गीतिका साहू, गीतिका चेक करो। यस मैम है। ओके, गुनिका नहीं, चलो गुनिका को तो हम खुद ही कॉल कर लेंगे, गुनिका को छोड़ो। गीतिका है शायद है। कौन है, कौन है? गुनिका नहीं है। गीतिका तो है। हाँ गीतिका। तो उम्र देखो, करुणा मैम मैम नहीं है। मैम नहीं है। मैम वो अभी नहीं है किसी भी क्लास में। ओके, करुणा का नाम जरा नोट कर। मैम नहीं है। करुणा को करण का तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। क्या चीज? मैम करण का तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। अच्छा, बी सेक्शन में शिफ्ट हो गई है करुणा। यस मैम। ओह अच्छा 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 अच्छा, तुमने बता दिया। मैम करण का लिस्ट में नाम ही नहीं है। करण का नहीं होगा, उसका नहीं होगा नाम लिस्ट, हो सकता है वो कुछ पता नहीं होगा, रीएडमिशन होना है कुछ होगा। छोड़ो, करुणा को क्रॉस कर देते हैं, इट्स ओके। देन कृतिका चौहान, चलो है। देन साहिल, चेक करो साहिल। नो मैम नहीं है। मैम नहीं है सर। साहिल को कॉल कौन करेगा? मैं कर दूंगा मैम। मैं कर दूंगा वेद। ओके, आर्यन, उसको ओके मैम से बात करो। मयंक साहू, इसी तरह नो मैम नहीं है। मयंक को कॉल कौन करेगा? मैम नंबर नहीं है किसी के पास। मैम उसका फोन ही नहीं लगता मैम। के पास होगा उसका फोन तो मैम वो बताता है क्या, उसने रिचार्ज नहीं करवाया मैम कब से। इसके पास से कोई कॉल कर सकता है, ये बताओ पहले।
अच्छा नहीं कर पाओगे, चलो मैं इसको देखती हूँ। मैम वो मैम कुछ कुछ मीटिंग्स में तो आता है मैम वो। हाँ तो जिस मीटिंग कॉल के लिए ट्राई कर सकता हूँ मैं उसे। जिस मैम मीटिंग मैसेज में आता आए, है कभी कभी। जिस मीटिंग में आए उसी समय बोल देना, मैम को मैसेज दे देना कि मैम से बात करो। मैं ट्राई कर सकता हूँ कॉल करने में, तो है। हाँ ट्राई करना, चलो बेटा बताना शाम तक मुझे। ओके देन मुकुंद शर्मा तो नहीं है अभी, है ना? चलो ठीक है। मुस्कान धाकड़, यस आ गई है। मुस्कान प्रेजेंट है कि मुस्कान चेक करो। यस मैम आ मैम गई। अच्छा तो मुस्कान को क्रॉस कर दिया, चलो मैंने। ओके मीनांसा इज प्रेजेंट, नियति इज प्रेजेंट, प्रखर इज प्रेजेंट, प्रणव प्रधान इज प्रेजेंट, प्रिंस मीना। यस मैम। यस मैम है। यस मैम मीन्स ही इज प्रेजेंट। अच्छा है। यस यस मैम। मैम। राज 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 वाल्मीकि। यस मैम है। मैम है। अच्छा राज के दो दो आईडी है, देखना पड़ेगा मुझे कौन सा है। ओके देन नेक्स्ट 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 ऋषिका प्रेजेंट है, चलो। समृद्धि प्रेजेंट है, संजय धाकड़ प्रेजेंट है, सर्वज्ञ प्रेजेंट, सत्यम प्रेजेंट, वेद प्रेजेंट, वेदांति को तो कॉल करने के लिए बोल दिया। ओके सो फाइनल हमारे पास देखो कौन कौन हो गया। अनमोल, करण का तो नाम नहीं है तो नहीं बोलना उसको। अनमोल, गगन, वेदांती, गुनिका को मैं कॉल करूंगी, मुकुंद को मैं कॉल करूंगी, छोड़ो इन दोनों को। देन करुणा बी सेक्शन में शिफ्ट हो गई, ठीक है। साहिल एंड मयंक, अनमोल, वेदांती, साहिल, मयंक एंड गगन, इतने लोगों को कॉल करना, इनको मैसेज देना, मैम से बात करें। ओके यस मैम। यस मैम। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो क्वेश्चन बताती, मैं आपको एक लास्ट एक्सरसाइज जल्दी से करा दूं आज आपका हो। अब देखो आपको कितना सिंपल लगेगा ये लास्ट एक्सरसाइज, क्योंकि हमने बहुत हाई फाई क्वेश्चंस कर लिए। तो अब आपको लगेगा ये कोई क्वेश्चन आपने नहीं। मैम वो कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन नहीं बताया अभी तक। नहीं बेटा अभी तो बहुत कुछ नहीं बताया, अभी तो अब सिर्फ आप अभी तो 1.5 1.4 1.2 तीन एक्सरसाइज नहीं हुई, बट बिफोर दोज एक्सरसाइजेस फर्स्ट यू कंप्लीट दिस 1.6 एक्सरसाइज। सबसे पहले आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। देखो कैसे, सीधी सी बात। सपोज करो ये क्वेश्चन, रेज टू दी पावर 1/2 एक सॉल्व करके मैं आपको बता देती हूँ। तो 64 रेज टू दी पावर 1/2, 64 के फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, मल्टीप्लाई करो जरा कितना ये इंटू 4 कितना आ रहा है देखो। या छोड़ो 2 2 में करो बेस्ट, चलो 2 इंटू 2 कितने टाइम्स आएगा 2, जल्दी काउंट करो फटाफट बताओ। 6 टाइम्स आएगा 2, यस। रेज टू दी पावर 1/2, ये थोड़ा पावर, अब देखो जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्पेस नहीं, बट ये आप लिखोगे तो 0 नंबर मिलेगा। पावर हमेशा इस ब्रैकेट के आउटसाइड लिखते हैं, ध्यान रखना। अब आप देखना, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम, यू कैन राइट 2 रेज टू दी पावर 6। कैन यू राइट 2 रेज टू दी पावर 6? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4 raised to the power 1/2. So next step will be power raised to the power, these two powers will be multiplied. तो 6 into 1/2, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 1 3. 2 raised to the power 3, it means 2 to 2 into 2, find answer 8. Clear? यस मैम। देखो यस मैम। एक तो ये किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, अब आप ये सोचो यहाँ पे पावर है 1/2, तो 1/2 मतलब 64 को किसी ना किसी का स्क्वायर लिखना है। 64 इज ए स्क्वायर ऑफ विच नंबर? 8। 8। आप इसको ये सब न लिख करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यू विल गेट फुल मार्क। कैसे? 64 को लिख देना 8 स्क्वायर एंड होल रेज टू दी पावर 1/2, फिर 2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल, फाइनल आंसर 8। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जो आपको सही लगे। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब आप देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ही सारे हो जाएंगे, सिर्फ ये नेगेटिव वाला देख लो, यदि नेगेटिव होगा तो आप क्या करोगे वो बता देती हूँ, वेट करो। वन 125 दिस फोर्थ पार्ट बता रही हूँ मैं आपको। डिलीट। सो फोर्थ पार्ट आपको ऐसे करना है,
125 raised to the power -1/3. अब ध्यान से देखना. First, you have to find prime factorization of 125. You will get 5 raised to the power 3. 5 into 5 into 5. Whole raised to the power -1/3. 5 raised to the power 3 into -1/3. 3 cancel. अच्छे से proper cancel करना. 5 raised to the power -1. Now you have already learnt in class 7th, if there is a negative power, then how will you convert negative power into positive power? Who will explain? Reciprocal. मैम रेसिप्रोकल कर देते हैं। Yes, बेस का रेसिप्रोकल करते हैं. तो 5 को लिखेंगे 5/1. अब 5/1 का रेसिप्रोकल 1/5. जैसे ही 1/5 करेंगे -1 विल बी +1. फाइनल आंसर 1/5. ओके, क्लियर? थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी करा दीजिए। थर्ड क्वेश्चन का देखो, ये सब आपने 7th क्लास में किया. अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है. इफ बेस इज सेम एंड इन बिटवीन डॉट मीन्स साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो 2 raised to the power 2/3, 2 raised to the power 1/5. बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है, जल्दी बोलो. पावर्स विल बी एडेड, ऐड हो जाती है. यदि बेस सेम हो और बीच में इनटू का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है. तो 2 raised to the power 2/3 + 1/5. एलसीएम लो, प्रॉपर सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया. अब यदि बेस सेम हो और अपोन में हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट. ये 1/4 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस. याद है कि सब भूल गए? याद है? यस मैम Okay. याद है। अब लास्ट वाला पार्ट देखो. इफ बेसेस आर डिफरेंट बट पावर इज सेम, इन दैट केस यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 बेसिस. दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉमन पावर ले लेंगे. कौन सा लॉ लग रहा है इसमें? Yes. a raised to the power m into b raised to the power b m raised to the power m is equal power to b. a into b raised to the ठीक power है. m. यस, बस आप एक बार एक काम करोगे, सबसे पहले 7th क्लास के सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एक बार खुद रिवाइज करोगे. 7th की बुक सर्च करो, आपको नेट में मिल जाएगी, वहां सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखो. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दोज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, ऑल पार्ट्स. ये आज आपका होमवर्क. कल आप सीसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से क्वेश्चन पूछेंगे. ओके, क्लियर हो गया? सब Yes, कर ma'am. लेंगे. यस Yes मैम. ma'am. यस मैम क्लियर है। बहुत इजी है, चलिए तो कर लोगे. अब आपको जो कल तो सबसे पहले इससे क्वेश्चन पूछेंगे एंड आफ्टर दैट कल 100% आपको पहले कंस्ट्रक्शन कराऊंगी मैं. कल याद से सब लोग प्रोटेक्टर, पेन, पेंसिल जो भी चाहिए, इरेजर सब रखना अपने पास. तो कल आपका 1.5 एंड 1.4 चेक करूं क्या है. 1.4 तो सबसे लास्ट में कराऊंगी. कल आपका 1.5 एंड 1.3 सॉरी 1.2 दो एक्सरसाइज कल हो जाएगी. ओके मैम। चलो, साईं राम. है क्या? अरे अच्छा, हाँ सॉरी. यस 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 यस. अभी तो फिलहाल है, नहीं होगा तो आपको लिंक भेज देंगे, एक बार मॉर्निंग में चेक कर लेना लिंक. यस ओके मैम। वैसे अभी आज की डेट में तो है, अभी तक मेरी नॉलेज में तो है. बट ये देखो, मुझे याद नहीं है कि आप लोगों को छुट्टी कैसी याद रहती है ना? मैम छुट्टियां तो याद रहती है। मैम मुझे आज की भी लग रहा था कि आज भी छुट्टी होगी. हाँ वेरी गुड बेटा. आज की, कल की, परसों की रोज ले लो, क्या है. चलो ओके, चलो लीव 1 बाय 1. 9 दिन तक. थैंक यू मैम।